So, welcome to the students. Now, this is the lecture number second of the chapter laminar flow. और जहां पर हम when the fluid is passing through the circular pipe, right, having the capital radius r. So here we have to calculate the velocity distribution. जो पहला लेक्चर था उसमें when the fluid is passing through the circular pipe उसमें हमें क्या फाइंड आउट किया था? shear stress, maximum shear stress and shear stress distribution. And in continuation of that lecture you can say, but it is the lecture number second I have taken. So in this case we will calculate the velocity distribution. Velocity distribution, right? Velocity distribution क्या कब? When the fluid is passing through the circular pipe, right, of radius r. So इस केस में we will find the equation or derive the equation of the velocity distribution when the fluid is passing through the circular pipe of radius r. So same diagram is here. This is the circular pipe of the diameter, capital diameter d. So its radius is r. Here I have taken the concentric fluid element of radius r, which slides inside the cylindrical fluid element of the radius r plus dr. You understand? So the fluid is flowing from left to right. The conditions are same. Everything is same here. So we have calculated the shear stress. जहां पे हमने अभी shear stress को calculate किया था, shear stress that is minus dou p upon dou x into r by 2, right? So this is the equation of the shear stress which we have derived. So this is the equation of the shear stress at the radius small r. Now here we have to now find the velocity distribution. So velocity हमें find out करने पड़ेगी at the radius r. First we will find the velocity at the radius r, and then we will see that what is the nature of the velocity distribution in this case, in the case of the circular pipe. As the shear stress distribution, we have seen that shear stress that distribute linearly in case of the circular pipe, and now here we will discuss about the velocity distribution in case of the circular pipe when the fluid is flowing from left to right. You understand? So this is the equation जहां तक तो हमने ड्राइव की थी equation shear stress की, and this is the equation of the shear stress at the radius r. You understand that? So as we know, so to obtain the equation of velocity, to obtain the equation of
velocity distribution to obtain the equation of velocity equation distribution. So as per the Newton's law of viscosity, हमारा टाउ जो था, टाउ दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, राइट? सो दिस इज द इक्वेशन of this du upon dy. Now substitute the value of this. Substitute the value of tau. Suppose this is your equation number 1 in equation 1, right? इक्वेशन 1 में ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आपको मिलेगा? ये दिस इज द इक्वेशन 1, टाउ की जगह ये पुट करें आप म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस डो पी अपॉन डो एक्स इंटू आर बाई 2. यू अंडरस्टैंड? हमने क्या किया, ये तो हमारी इक्वेशन थी जो हमने ड्राइव किया शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन. सो एज पर द लॉ ऑफ न्यूटन विस्कोसिटी, राइट, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई. दिस वी हैव ड्राइव, ये तो पहले भी ड्राइव करके आपको बताया. तो इसको आप जहां पे टाउ की जगह ये इक्वेशन फर्स्ट में ये पुट कर दे. अब देखिए यहां पे इस इक्वेशन में आप जा जाइए, राइट? इफ आई से जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज योर बाई. जहां से कहीं से भी ले लें, दिस डिस्टेंस इज योर बाई, राइट? बाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल अप टू दिस द सिलेंड्रिकल एलिमेंट का जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू वाई. राइट? सो यू कैन से जहां से y इज मेयर्ड फ्रॉम द, y जो है y इज मेयर्ड फ्रॉम द बॉल ऑफ द पाइप. y को आप बॉल ऑफ द पाइप से मेयर करें तो आपका क्या होगा? यू कैन से y, जो y है, दिस इज इक्वल टू r माइनस स्मॉल r. r इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टू हेयर, दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r. सो ये जो आपका y होगा, दिस इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r. यू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज कैपिटल Y, दिस इज इक्वल टू R माइनस स्मॉल r. Therefore, differentiate this with respect to r, small r. तो ये अगर डिफरेंशिएट करें with respect to r तो ये आपका आएगा dy अपॉन dr. This is equal to 0 minus 1. Therefore, dy this is equal to minus dr. Right? तो dy जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस dr के बराबर. तो जहां आपको dy की वैल्यू, यू हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy. अब dy की जगह आप माइनस dr सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पे. यू अंडरस्टैंड? सो ये जो आपको इक्वेशन मिली थी, जहां पे dy की जगह क्या आएगा? माइनस dr. तो अब की इक्वेशन बन जाएगी, आप सब्स्टिट्यूट dy इन दिस इक्वेशन, दिस इज माइनस म्यू, माइनस पहले ले लें आप, du upon dr, this is equal to minus dou p upon dou x
into r by 2. You understand? Into r by 2. ये आपकी इक्वेशन बन गई. You understand this? ये सबसे देखिए, ये आपका माइनस और जे का कैंसिल हो गया. तो अब आपकी दिस सिंपलाइज, जहां पे लिख ले आप, ये आपका आ गया म्यू इंटू डी यू अपॉन डी आर. दिस इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर बाई 2. राइट? del p upon del x into r by 2. You understand this? ये आपका आ गया यहाँ पे. तो du की क्या वैल्यू आएगी? What is your therefore? अगर मैंने du निकालना है, du, so du आपका आ जाएगा, म्यू इधर ले जाइए, 1 upon 2 म्यू 1 upon 1 upon 2 mu into dp upon dx into dr. You understand? dp into dx into r into dx, dr. Yes, r into dr. Into r to dr. So this is the equation. 1 upon 2 mu 1 upon 2 mu del p upon del x into r into dr. You understand? So हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है. इसलिए हमने ये वेलोसिटी वाला फैक्टर एक साइड पे ले लिया और दूसरे फैक्टर्स जो थे मैंने एक दूसरी साइड पे ले लिए. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ, दोनों साइड्स के ऊपर इंटीग्रेट करो. डी यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा? u, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 म्यू कांस्टेंट, डो पी पॉन डो एक्स. दिस इज कांस्टेंट, तो ये बाहर ले लीजिए आप. 1 अपॉन 2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स कांस्टेंट एंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन डालिए यहां पे, r इंटू डी आर. यू अंडरस्टैंड? r इंटू डी आर एंड this is equal to r square by 2, and therefore this implies u is equal to 1 upon 2 mu into del p upon del x into r square by 2 plus c. तो ये आपकी आफ्टर इंटीग्रेशन यू गॉट दिस इक्वेशन. सो ये आपको इक्वेशन मिल गई. राइट? ये आपकी आगे u की इक्वेशन, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. c जहां पे क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? वी विल जस्ट कंसिडर द बाउंड्री कंडीशंस. हम क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
consider the to find the value of C, consider the boundary conditions. अब देखिए बाउंड्री कंडीशंस यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर के बराबर लेता हूं, राइट, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर। इस केस में क्या होगा, कैपिटल आर मींस एट द बाउंड्री ऑफ द बॉल, एट द बाउंड्री ऑफ द पाइप, सर्कुलर पाइप। तो बाउंड्री में, सर्कुलर पाइप में जो आपकी जो आपकी वेलोसिटी होगी, यू की वैल्यू होगी 0 होगी, राइट। Shear stress is maximum, u is 0 here because it is a fixed boundary. The molecules which are in contact with the boundary, they are also at rest. So u in this case, this is equal to 0. If we will take this boundary condition, अगर small r is equal to r के बराबर है, तो इसमें आप पुट कर लीजिए इसको इक्वेशन में, सपोज ये इक्वेशन पे साइकिल लिख लेता हूं। सो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो जू की जगह क्या आया है, 0, u इज इक्वल टू 0, बाकी 1/2 म्यू into del P upon del X into R, R की जगह क्या आएगा, कैपिटल R स्क्वायर by 2 and plus C. You understand? Plus C. Therefore, C is equal to therefore that implies C is equal to माइनस ले लीजिए, -1/4 म्यू इंटू del P upon del X इंटू R स्क्वायर। तो ये आपकी C की वैल्यू यहां पे आ गई, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ C। आप सब्स्टिट्यूट कर दें C की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आपने निकाली है उसको सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में, राइट। यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन सेकंड। तो therefore u is equal to 1/2 म्यू टू और 2 ये 4 कर लो, दिस इज 1/4 म्यू इनटू del P upon del X into R square -1/4 म्यू del P upon del X into capital R square, right? So ये C की वैल्यू जो पुट की एंड यू गॉट दिस इक्वेशन। अब वन अपॉन 4 म्यू इंटू del P अपॉन del X,
ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो आप, नॉट सॉरी कांस्टेंट, इट इज दे आर द फैक्टर हियर, तो ये कॉमन है 1/4 म्यू into del P upon del X, and you got this equation R square minus R square, right? R square minus R square, and this is the equation so R that implies, आप इसको ऐसे भी लिखें, U is equal to 1/4 म्यू into माइनस, आप इससे कॉमन ले लें बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट दैट शुड बी नेगेटिव होना चाहिए, तो अगर ये माइनस कॉमन लिया तो बीच में आपका आ गया R square minus R square. So this is the equation of the velocity at the radius small r. ये आपकी जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी की at the radius small r. You understand this? ये आपको याद रखना है, 1/4 म्यू into minus del P upon del X into R square minus R. So जहां तक ये इक्वेशन आपकी ड्राइव हो गई है U, अब इस इक्वेशन को आप देखिए, जहां पे देखिए आपका 4 म्यू दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, del P अपॉन del X, del P अपॉन del X ये भी कांस्टेंट है, राइट? So you can say the velocity that is direct velocity varies with the square of r. Velocity that varies with square of r. तो r भी आपका कैपिटल R भी कांस्टेंट है because this is the radius of the circular pipe. Hence you can say velocity varies with square of r. समझाई बात? तो वेलोसिटी जो है जहां पे वेरी करेगी with the square of the r, it means that the velocity distribution, thus the equation, ये जो आपकी इक्वेशन है, सपोज दिस इक्वेशन मैं थर्ड कर लेता हूं, thus the equation third, thus equation third is the equation of पैराबोला। ये जो आपकी वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, जहां से आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हियर in case of the fluid when it is passing through the circular pipe, velocity distribution in this case that is parabola, parabolic velocity distribution हमें मिलेगी। so velocity distribution क्या है इसकी? तो velocity distribution is parabolic, राइट? तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे क्या है, पैराबोलिक है। अब इसको हम यहां पे शो कर देंगे।
इसके नीचे ही लिखते हैं हम डायग्राम आई विल ड्रॉ हियर। तो अगर किसी सेक्शन के ऊपर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को लेते हैं, दिस इज द सर्कुलर पाइप, राइट। दिस इज द सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस आर। इसका जो रेडियस है ये गिवन है, दैट इज सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस आर। And if I will consider any section here, suppose this is a section I have just considered. So in this section, जो velocity distribution थी as per the equation which we have tried, तो velocity distribution क्या होगी आपकी? Parabolic, right? So this is the velocity distribution parabolic. राइट। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए, दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक कर्व। ये आपकी आ गई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो वेलोसिटी दैट इज पैराबोलिक। तो आप कह सकते हैं मिनिमम वेलोसिटी इस केस में कहां पे होगी? मिनिमम वेलोसिटी होगी कहां पे? एट द बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी होगी कब? व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू r। जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी तो वहां पे आपकी जो वेलोसिटी है क्या होगी? मिनिमम होगी। जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी जो आपने अभी फार्मूला ड्राइव किया था vu, दिस इज इक्वल टू -1/4 म्यू इंटू इसमें माइनस del p अपॉन del x इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यही इक्वेशन अभी ड्राइव किया ना मैंने। अब देखिए, जब r को आप कैपिटल R के बराबर लेते हैं, मींस एट द बाउंड्री कंडीशन, ये आपका क्या है? ये आपका कैपिटल R है जहां से लेके जहां तक, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करें अगर स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर, तो ये आपका आ जाएगा 0। सो thus we can say that velocity at the boundaries, this boundary or this boundary, means velocity at the boundaries is equal to 0, right? वहां पे मिनिमम वेलोसिटी होगी, मींस 0 वेलोसिटी होगी। और जैसे जैसे हम जहां से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा हमारा बाउंड्री से, हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या है? इंक्रीज होती जाएगी। यू अंडरस्टैंड दैट? एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द बाउंड्री टुवर्ड्स द सेंटर लाइन, आवर वेलोसिटी इंक्रीजेस। यू अंडरस्टैंड? एंड मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी हमारी सेंटर लाइन के ऊपर। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी हमारी सेंटर लाइन के ऊपर व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब आपका r स्मॉल r दिस इज इक्वल टू 0 होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी
मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, बिकॉज दिस इज द पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, पैराबोलिक था, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कहां पे होगी, सेंटर लाइन के ऊपर, राइट। सो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू 0। जब आपका स्मॉल r 0 होगा उस वक्त हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, दैट इज एट सेंटर लाइन। तो उस वक्त जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी की इक्वेशन होगी u max, वो क्या आएगी, 1/4 म्यू माइनस dou p अपॉन डेल x। r 0 है तो इनटू r स्क्वायर। So this is the equation of the maximum velocity. You understand? तो ये आपकी इक्वेशन है मैक्सिमम वेलोसिटी की। So this is the equation of the maximum velocity. तो इस पार्ट में आपने क्या किया, पहले हमें वेलोसिटी की इक्वेशन हमने ड्राइव की एट द स्मॉल रेडियस r, राइट। ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है दिस इज एट द रेडियस r, स्मॉल r के ऊपर। और इसी इक्वेशन को फ्रॉम हियर वी हैव सीन दैट दिस इक्वेशन, द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज पैराबोलिक। सो इट मींस दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होगा दैट इज द पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि एट द बाउंड्री के ऊपर हमारी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और सेंटर लाइन के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी होगी हमारी मैक्सिमम होगी। तो बाउंड्री के ऊपर जब वेलोसिटी 0 है तो जो मिनिमम वेलोसिटी या 0 वेलोसिटी का होगी व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू r। जब स्मॉल r रेडियस जो है, ये वाला रेडियस मैंने लिया था, स्मॉल r इज द रेडियस, बिकॉज ये सारी जो इक्वेशंस हमने ड्राइव की हैं ये मैंने ड्राइव की है सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर। एक स्मॉल सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट लिया जिसका रेडियस r है, राइट। उसके ऊपर ये सारी इक्वेशंस हमने ड्राइव की है, चाहे शियर स्ट्रेस की इक्वेशन थी, चाहे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन थी। जो बेसिक इक्वेशन हमें मिली वो हमें मिली स्मॉल रेडियस स्मॉल r के ऊपर, और उसके बाद हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी थी, जैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना था, तो तब हमने अपनी कंडीशंस वहां पे अप्लाई की और उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वी हैव कैलकुलेटेड। तो जो बेसिक इक्वेशन वी हैव ड्राइव दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 को छोड़ दो आप, तो ये जो बेसिक इक्वेशन हमने ड्राइव की थी दैट इज द इक्वेशन एट द रेडियस स्मॉल r। सो दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन, एंड फ्रॉम द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन वी कम टू नो दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज पैराबोलिक इन नेचर, means at the boundary level or on the boundary the velocity is 0, and the center line velocity जिसे हम कहते हैं, this is the center line velocity, that is the maximum velocity। और center line velocity का ये मैंने u maximum is equal to 1/4 mu into minus del p upon del x into r square, right। अब हम इसमें रेशियो फाइंड आउट करेंगे, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी to average velocity। ratio of maximum velocity to average, ratio of maximum velocity to average velocity, right। So ratio of maximum velocity to average velocity ये हो गया आपका maximum velocity, and this is one your
एवरेज वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी? 1/4 म्यू इंटू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू capital R square, right? When R is equal to 0 into capital R square. This is the maximum velocity और जो average velocity है this we have to calculate. Average velocity को हमें calculate करना है. Average velocity we have to calculate, right? इसका रेशियो फाइंड आउट करना, तो हमारी एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया, यू अंडरस्टैंड? तो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस द सेक्शन, यह हो गया आपका डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड across the section upon area, right? And this is you can say this is equal to q upon area, that is क्या लेंगे हम? पाई आर स्क्वायर, q upon pi r square. This is equal to q upon pi r square. तो हमें q निकालना पड़ेगा. Yes, we have to find the discharge q, complete discharge in the whole pipe, वो that we have to find out. अब देखिए इसको हम कैसे find out करेंगे. इसको मिटा दीजिए. As we have considered the small ring or circular fluid element here, तो मैं कहता हूं कि dq is the small discharge per second through this concentric fluid element of रेडियस कितना था इसका? स्मॉल r एंड थिकनेस इसकी कितनी है? dr. यू अंडरस्टैंड? तो dq इज के हम ले लेंगे. अब देखिए dq की वैल्यू निकालनी है, तो dq हमारा क्या आएगा? dq इज इक्वल टू, अगर कंसेंट्रिक रिंग की बात करें तो हमारा इसका एरिया कितना होगा? दैट इज 2 पाई r इंटू डी आर. तो dq क्या होगा? वेलोसिटी इंटू एरिया. dq velocity of the fluid the liquid per second at radius r into area, right? into area. तो dq जहां पे क्या आ जाएगा? मैं लेता हूं जहां पे u
2 pi r into dr. 2 pi r, the circumference of the radius r into dr, thickness. तो ये आपका आ गया dq, right? But we have to find the q. हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल डिस्चार्ज वी हैव टू फाइंड आउट. इसको मिटा दीजिए. तो ऐसे लिख लो आप, डी क्यू दिस इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज डी क्यू, यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्या थी? 1/4 म्यू माइनस डो पी अपॉन डो एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ये तो आपकी u की वैल्यू आ गई, द लिक्विड पर सेकेंड एट द रेडियस आर के ऊपर. यू अंडरस्टैंड? u की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया तो बाकी क्या है? इंटू 2 पाई r इंटू डी आर. यू अंडरस्टैंड? जहां तक आपको चीजें क्लियर होगी. अब टोटल डिस्चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. सो फॉर क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग both sides. Therefore, इंटीग्रेट जब करेंगे आप, डी क्यू को इंटीग्रेट किया तो ये सीधा लिख लो क्यू. अब देखिए 1/4 म्यू, दिस इज कांस्टेंट, माइनस डो पी अपॉन डो एक्स, दिस इज कांस्टेंट, 2 पाई, दिस इज कांस्टेंट. तो ये चीजें तो आप बाहर ले लीजिए. आप ये आप क्या करें? सीधे बाहर ले लें. तो आप लिख लेंगे 1/4 म्यू, दिस इज कांस्टेंट, pressure gradient, this is constant at any section, and 2 pi, this is also constant. अब इंटीग्रेशन क्या आएगी आपकी? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर, राइट? यू अंडरस्टैंड? That implies Q is equal to 1/4 mu into minus del P upon del X into 2 pi, R को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉल आर को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ गया आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर माइनस आर क्यू इंटू डी आर. यू अंडरस्टैंड? अच्छा, नाउ यू सी हियर, अब Q इज इक्वल टू 1/, माइनस del P अपॉन del X इंटू 2 पाई. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? यह आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2. दिस इज योर आर स्क्वायर बाई 2
और लिमिट भी तो ले लें आप, 0 से r ले लेना, बिकॉज आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से r, कैपिटल R तक, क्योंकि टोटल डिस्चार्ज भी हैव टू फाइंड आउट। तो जे आपका आ गया, जे आपका आ गया r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाई 2 माइनस r4 by 4, and the limit is 0 to r, and the limit is 0 to r. You understand? Limit substitute करें, therefore discharge q is equal to 1 upon 4 mu dou p upon del x into 2 pi, and this is equal to, पुट किया ये तो ये आपका आ गया r4 by 2 minus r4 by 4. Understand? And that implies q is equal to, पुट कर लें आप, ये 2 से ये 2 कट जाएगा यहां से, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 4. सो एलसीएम आपका आ गया 4. 2 तो r4 बाई r4 आ जाएगा ना ये, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू पाई that is into r4 by 4, r4 by 4, right? Right? सो ये बन जाएगा आपका, देखो Q इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स into r4 by 4. So this is the value of the total discharge which we have calculated. This is the value of the total discharge which we calculated. So therefore average velocity, ये Q की वैल्यू हमें आगे, डिस्चार्ज की वैल्यू we have find out. हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना था, एवरेज वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया, एंड दिस इज इक्वल टू Q क्या है, पाई अपॉन 8 म्यू माइनस डेल पी अपॉन del x r4, not r4 by 4 नहीं, this is r4, right, into r4. You understand? Yes. And area क्या है, what is your area, pi r square, area is pi r square, pi और ये pi आपका कैंसिल हो जाएगा,
आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, स्क्वायर आ जाएगा, एंड नाउ एवरेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, हम इसको यू बार से डोनेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू 1/8 mu minus del p upon del x into r square। तो ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी का, 1/8 mu minus del p upon del x into r square। तो एवरेज वेलोसिटी through the circular pipe when the fluid is flowing inside the circular pipe, then the relation is 1/8 mu minus del p upon del x into r square। So you have got the average velocity, and we have to find the ratio of the तो मैक्सिमम वेलोसिटी का तो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया था। सो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी आपकी, u मैक्सिमम यह थी 1/4 mu माइनस डेल p अपॉन डेल x इंटू आर स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो फाइंड आउट हमारा क्या था आज, रेशो हमें फाइंड आउट करना था, रेशो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टू एवरेज वेलोसिटी, यही फाइंड आउट करना है ना रेशो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 1/4 mu minus del p upon del x into r square divided by 1/8 minus del p upon del x into r square। अंडरस्टैंड, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो इसकी आएगी आपकी 2। सो रेशो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की रेशो को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इन केस ऑफ the circular pipe, when the fluid is flowing in the circular pipe, then the ratio of the maximum velocity to the average velocity, this is equal to 2। You understand? जहां तक चीजें आपको क्लियर हैं। तो आज हमने अभी तक हमें वेलोसिटी की डेरिवेशन किया एट द रेडियस स्मॉल r, और वहां से हमें मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर, राइट। और उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट किया व्हेन वी पुट स्मॉल r दिस इज इक्वल टू 0, बिकॉज द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप, बिकॉज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने देखा जहां पे कि जो वेलोसिटी की जो इक्वेशन हमने ड्राइव की एट द रेडियस r, वो जो इक्वेशन की नेचर थी दैट वाज द पैराबोलिक नेचर। It means that the velocity distribution in this case is parabolic, और पैराबोलिक जो नेचर थी उसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे आएगी, सेंटर लाइन ऑफ द पाइप। यू अंडरस्टैंड? तो सेंटर लाइन ऑफ द पाइप के ऊपर हमारी कहां क्या थी, मैक्सिमम वेलोसिटी थी। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना था कि रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट किया कि हाउ वी विल कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी व्हेन द फ्लूइड और लिक्विड is flowing through the pipe। We got the equation of the average velocity which is here,
average velocity, it is denoted by u var 1 upon 8 mu into minus del p upon del x into r square. And then we have calculated ratio of the maximum velocity to average velocity, and this is equal to 2. You understand? तो जहां तक चीजें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की आपको क्लियर है? यस. तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें. तो अब नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ पाइप. राइट, प्रेशर ड्रॉप के इक्वेशन को भी ड्रॉप करके लें. सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ पाइप. ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ पाइप. राइट, तो इसकी हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं पहले. सपोज दिस इज योर पाइप. So same fluid is flowing from left to right here. Circular pipe of the radius r. इसमें भी जो आपका रेडियस है वो क्या है? Radius r. You understand? So drop of pressure में find out करना है. Let us consider the two sections. Suppose ये एक section है आपकी 1 and you take this section 2. राइट, इसका जो डिस्टेंस आप ले लीजिए फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट्स डिस्टेंस इज से x1 और डिस्टेंस फ्रॉम हेयर x2. राइट, तो हमें ड्रॉप इन प्रेशर इस लेंथ के बीच में निकालना कि कितना. x1 में अगर आपका प्रेशर P1 है, जहां पे आपको प्रेशर P2 है, तो कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ. सपोज ये कह सकते हैं कि जे जो आपका डिस्टेंस है, जो लेंथ है, दिस इज इक्वल टू L. राइट, तो जे हमारा वी हैव टू फाइंड द ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ पाइप. यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, एज वी नो, अभी हमने इक्वेशन ट्राई किया था. एज वी नो द इक्वेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी. अभी आपने एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन ट्राई किया था. बताइए व्हाट इज द इक्वेशन. यू आर इज इक्वल टू u bar, that is u bar, this is equal to 1 upon 8 mu minus del p upon del x into r square. यही इक्वेशन था जो भी हमने ड्राइव किया. दिस इज द इक्वेशन. राइट, so from this equation, देखिए इसी इक्वेशन से हम निकालेंगे. from this equation, तो
डेल पी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर आएगा? दैट इंप्लाइज माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स. This is equal to 8 UR into mu upon R square. You understand this? Del P upon del X. This is your pressure gradient, right? And this is good. Now integrating the above equation both sides. R इसको इस तरीके से लिख ले. That implies minus del P is equal to dx को आप उधर ले जाइए, राइट? dx को क्या करें आप उधर ले जाएं, माइनस डेल P. दिस इज इक्वल टू del P. This is equal to 8 U var into mu upon R square into dx. You understand this? So del P is equal to this one. Now J वाली इक्वेशन इसको ऐसे कर लेता हूं, ये शायद आपको दिखाई ना दे. दिस वाली इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को क्या करें, आप इंटीग्रेट बोथ साइड्स. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड के ऊपर, मींस ये आपका आ गया माइनस डेल पी. दिस इज इक्वल टू, ये सब कुछ आपका कांस्टेंट है, चलो पहले अंदर ही लिख लेते हैं. 8 U into mu upon R square into dx, राइट? अच्छा, लिमिट क्या होगी इसमें देखिए, लोअर लिमिट क्या होगी? इफ यू विल सी हियर एट द पॉइंट 2, अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूं तो पॉइंट 2 के ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर पॉइंट 1. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो प्रेशर है आपका इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो रिड्यूस करता जाएगा टू ओवरकम द shear स्ट्रेस रेजिस्टेंस, राइट? तो shear स्ट्रेस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज वी हैव ओनली वन पैरामीटर, प्रेशर इज देयर, जो हमें जिसको हम यूज करेंगे, जिसके द्वारा हमारा जो shear स्ट्रेस रेजिस्टेंस है उसको हम ओवरकम करेंगे. तो जो प्रेशर आपका जहां पे होगा, सपोज 1 के ऊपर प्रेशर आपका P1 है और इसके ऊपर आपका प्रेशर P2 है. As I told you that pressure goes on decreasing in the direction of flow. तो P1 का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा. P2 का प्रेशर क्या होगा, कम होगा. तो इसलिए जो आपकी लिमिट होगी दैट इज फ्रॉम 2 to 1. लोअर लिमिट क्या आएगी आपकी 2, प्रेशर कम है. हायर लिमिट 1, लोअर लिमिट 2 एंड दिस इज 1. यू अंडरस्टैंड दिस? जहां तक चीजें आपको क्लियर होगी, राइट? अब क्या है, आप आगे इंटीग्रेट कर लो, इसको मिटा लेते हैं हम. जे एल इज द लेंथ, ये जो डिस्टेंस इनके बीच में है, एल इज द लेंथ ऑफ दैट, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो इसको इधर हम तो जे माइनस ऐसे रहेगा, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा क्या आएगा, डीपी का. और लिमिट भी आप इसमें पुट कर लीजिए, तो हायर लिमिट ये आ गया P1 माइनस P2. यू अंडरस्टैंड? इंटीग्रेशन ऑफ डीपी दैट इज P, और उसके बाद लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो. हायर लिमिट पहले, तो P1 माइनस P2. यहां तक क्लियर है?
दिस इज इक्वल टू, ये चीजें आप बाहर ले लो, 8, दिस इज यू बार होना चाहिए था, राइट, एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं ना, 8 यू बार इंटू म्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऑल दीज आर क्या है, कांस्टेंट है, ऑल दीज आर कांस्टेंट, एंड यस ये आ गया dx 2 to 1, यहां तक अंडरस्टैंड। तो dx इज इक्वल टू, dx क्या होगा, x2 माइनस x1, dx क्या है, दैट इज x2 माइनस x1 एंड दिस इज इक्वल टू l। dx जो लेंथ है वो मैंने अभी डायग्राम्स का कैंसिल कर दिया, मैंने जो पहली सेक्शन से जहां से लेके जहां तक ये पहली सेक्शन है, जहां डिस्टेंस लिया था मैंने x1, और ये जो दूसरी सेक्शन है जहां पे लिया था x2, और मुझे जहां से लेके जहां तक x1 और x2 के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, मैं कहता हूं ये डिस्टेंस जो है l है एंड दिस इज dx, है ना, dx इज द डिस्टेंस। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये आपका आ गया। अब इसको आप इस तरीके से लिख लो, दैट इंप्लाइज, माइनस अंदर ले जाओ, दैट इज P2 माइनस P1, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, that is 8 ur into mu r square, ये आपका आ गया x और लिमिट आ गई 2 to 1, यू अंडरस्टैंड, x 2 to 1, इसको मिटा देते हैं इस पोर्शन। Therefore, P2 minus P1, this is the drop of pressure, ये आपका आ गया 8 u bar into mu into r square, that is x2 minus x1, और ये जो x2 ये आपका x2 है, x2 minus x1 दिस इज इक्वल टू l, ये मैंने पुट यहां पे रखा है, ठीक है, x2 minus x1 दिस इज इक्वल, दैट इंप्लाइज P2 minus P1 is equal to 8 u bar into mu into r square into L. This is the equation of the pressure drop. ये इक्वेशन किसकी है, प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन आई प्रेशर ड्रॉप, राइट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्रेशर ड्रॉप। और अगर मैं r को d/2 पुट करता हूं, अगर r आपका जो है d/2 है, देयरफॉर r स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर, r स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर अपॉन 4, कर लो पुट जहां पे, इन केस ऑफ d के केस में अगर आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P2 माइनस P1 दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका आएगा 32 u बार, 32 u बार इंटू म्यू इंटू L upon d square. You understand? So this is the equation of the pressure drop between the two section. ये याद रखना है, pressure drop between the two section, 32 u bar into mu into L upon d square. जहां तक चीजें क्लियर है, आप देखिए Now we have to calculate the head loss, जहां पे head loss जो है ये हो गया आपका ड्रॉप इन प्रेशर P2 माइनस P1, दिस इज ड्रॉप इन प्रेशर बिटवीन द टू सेक्शन। अब इसमें आपका आ गया हेड लॉस,
हेड लॉस, जे किसके बराबर होता है, हम इसको लिखते हैं P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, राइट, that is HF, that is denoted by head loss, right? So head loss, this is equal to this one. तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी हेड लॉस की, therefore that implies HF क्या हो गया, P1 अपॉन this is not P2 upon P1, this is P1 upon P2. This is a P1 अपॉन P2, ये माइनस से हुआ था ना, इसे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, P1 माइनस P2, यस, सो P1 माइनस P2, दिस इज इक्वल टू 8 UR दिस वन, तो हेड लॉस क्या होगा, P1 माइनस P2 की जगह क्या आया, दैट इज 32 UR into mu into L upon rho so this is the formula of the head loss or friction loss in case of the circular pipe when the fluid is passing through this. This is very important formula, and this formula is called the Hagen's-Poiseuille's formula. So this is called the Hagen. This is called the Hagen-Poiseuille's formula. You understand? सो आज ये जो सर्कुलर पाइप का था, इसमें जितने भी ये पैरामीटर्स थे ये सारे ड्राइव कर दिए मैंने, shear stress, first shear stress distribution, maximum shear stress, then the velocity distribution, then the average velocity, maximum velocity, ratio of the maximum velocity, and then the drop in pressure, and finally head loss. And this is called the Hagen's-Poiseuille's formula. HF is equal to 32 UR into mu into L upon rho G D square. This is very important formula for head loss in the pipe. तो ये आपका जो सर्कुलर पाइप का था, 2 लेक्चर्स, एक इंट्रोडक्शन हो, इसमें ये पार्ट आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो थर्ड होगा, वी विल टेक द 2 पैरेलल प्लेट्स, और अगर पैरेलल प्लेट्स के ऊपर आपका फ्लूइड अगर पास करता है पैरेलल प्लेट में, तो उस वक्त हमारे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होंगी, तो उसका भी हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। तो ये आई थिंक जहां तक चीजें आपको सारी क्लियर होगी अच्छे तरीके से, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा थर्ड वो कल लेंगे, राइट। सो थैंक यू।